Hello traders, so welcome to a new educational video. So today we'll be talking about position sizing. So I believe most of the new traders who are in the market lose most of their capital because of wrong position sizing. So नए नए जो भी ट्रेडर्स है वो लोग अपना कैपिटल लूज कर जाते हैं क्योंकि वो लोग को पोजीशन साइजिंग ठीक से समझ नहीं आता. सो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं. सो द मोस्ट ईजिएस्ट वे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पोजीशन साइजिंग इट कैन बी आंसर्ड बाय दिस क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी टू बाय. Let's say you have identified a pattern, okay, a particular pattern in the chart, you're going to enter the trade. So at that time the next question would be how much quantity to buy. So first let me tell you what is a mistake that people do. Like लोग normally जो generally नए novice traders होते हैं वो लोग क्या गलती करते हैं. Let's say if their capital is 10,000 rupees, let's say, okay, if the capital is 10,000 rupees and let's say Tata Motors is trading around for somewhere around 100 rupees. So what they will do, they will just see how much they can buy. Probably they will divide this by 100. So they can see that, okay, so 100 shares of Tata Motors I can buy, whether it might be for intraday or like let's say swing. But intraday it's a different story because you normally get a 10x leverage from your broker and you can buy more. So I'm not talking about that. So people think quantity to buy is depending on the capital. So people think like this, मतलब वो लोग ये मेंटालिटी मन में रखते हैं कि जो क्वांटिटी टू बाई है वो डिपेंड करता है कि आपके कैपिटल के ऊपर. सो लेट्स से व्हाट इज योर कैपिटल. तो कैपिटल वो ओरिजिनल अमाउंट है जो आपके ब्रोकर अकाउंट में पड़ा हुआ है, राइट, नॉट द लेवरेज्ड अकाउंट, लेवरेज्ड कैपिटल. जैसे कि आपके पास एक्चुअली में है 10,000 रुपए आपने जो डाला है आपके ब्रोकर के अकाउंट में, दैट मीन लेट्स से आप स्टॉक्स आपने 10,000 डाला है तो ये आपका कैपिटल है, ओके, ना कि आपका कैपिटल वो 10x मार्जिन वाला है. मतलब अगर आप स्टॉक्स आपको 10x मार्जिन देता है तो ये 1 लाख रुपीज है एंड दैट इज नॉट योर कैपिटल. रिमेंबर दैट इज नॉट योर ओरिजिनल कैपिटल. योर कैपिटल इज जस्ट द ओरिजिनल मनी, द 10,000 रुपीज दैट यू पुट इन द अपस्टॉक्स अकाउंट एंड दैट इज योर ओरिजिनल कैपिटल. सो डोंट फॉरगेट दैट थिंग, ओके. सो जब भी मैं कैपिटल का बात कर रहा हूं यहाँ पे, so it is the original money that you have in the broker account, not the margin money or the leverage that you get, okay. So we are talking about the original capital. So people think this is directly dependent on the capital, but no, it is totally wrong if you are doing this. Now quantity to buy should always be dependent on your risk taking appetite, okay, on your risk taking appetite. Like let's say we say कि you can only eat as much as you can digest, right. मतलब आप उतना ही खा सकते हो जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो. मुझे डाइजेस्ट का हिंदी नहीं आता इसलिए मैं उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया. सो इट शुड बी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क. सो लेट्स टॉक अबाउट रिस्क. लेट्स से यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है. लेट्स से यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, अ न्यू वेंचर इनटू अ न्यू फील्ड. लेट्स से यू आर स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस. So what you have to always do is whenever you're getting into the business, you have to first understand what is my losses, or else we call it the cost of doing business. We call it the cost of doing business. Like even if let's say you're starting the business, so you should always know how much money I am ready to lose doing this business. So you can only lose that much money, right? So let's say you have to invest on the kitchen accessories, and then you have to invest on the delivery modes, like your food should be delivered to the customer's house. All those things should be there. So you have to calculate the amount or the cost of doing this business and the cost with which even if you lose it, it doesn't matter. Like ये अगर ये जो इसका जो cost आ रहा है वो अगर आप लेट्स से ये बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आप ये बिजनेस आपको क्लोज करना पड़ रहा है, तब भी वो जो लॉस है वो आप बेयर कर सकते हैं. तो अगर ये जो लॉस है अगर आप बेयर कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू बेयर दिस लॉस, देन यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस. सो इन द सेम वे इन ट्रेडिंग यू शुड ओनली गेट इनटू अ ट्रेड if your risk is favorable. If your risk is favorable, that means you are ready to lose this risk if your trade goes wrong, okay. You are ready to lose this risk, okay, if the trade goes wrong. So risk is what? A percentage of your capital. Let's say your capital is 10,000 rupees, okay, 10,000 rupees.
So the most favorable risk is 1% of your capital. Remember this always, 1% of capital. I know there are aggressive traders who use up to 2 and 3% also, but I generally use 1% of my capital as a risk, and you should also do that same. Okay, so let's say 1% of your capital means here 1% of 10,000. तो 1% 10,000 का क्या कितना होता है? That is 100 rupees. So your risk for every trade that you take, right, should be 100 rupees maximum. Got it? तो आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा रिस्क लेने से कितना कमा लेंगे, तो यही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोजीशन साइजिंग में. आप क्या सोचते हो कि मैं अगर रिस्क बड़ा रखूँ तो कमाऊंगा भी बहुत, बट याद रखना कि आप जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी बार जब भी लॉसेस होगा तो आपका कैपिटल जो है वो कम होता जा रहा है, राइट. अगर आप लेट्स से जो ये रिस्क है वो अगर आप एक ट्रेड पे 1000 लेते हो, ओके, इफ यू आर टेकिंग 1000 रुपीज and you are losing that, then this 10,000 becomes 9,000. So you are losing almost 10% of your capital. So next time आप जब ट्रेड कर रहे होगे तो आपके पास सिर्फ 9,000 रुपीज बचा रहेगा, राइट. So इसलिए we generally prefer to use only 1% of your capital. Now next what? So now I know that 100 is my risk. So I am assuming that कि आपका जो कैपिटल है that is 10,000 रुपीज. ठीक है, मैं एक्चुअली बहुत कम लिया हूँ, और जनरली लेट मी डिस्क्लोज दिस कि मेरा कैपिटल भी बहुत छोटा है. मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ. आई एम अ पार्ट टाइम ट्रेडर विथ अ वेरी स्मॉल कैपिटल. सो दैट्स वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल कैपिटल्स हियर. 10,000 रुपीज ही है आपके पास, तो यहाँ पे आपका 1% बनता है रिस्क. सो फॉर एवरी ट्रेड यू टेक द रिस्क शुड बी मैक्सिमम 100 रुपीज. सो लेट्स से हाउ यू डू इट इन अ ट्रेड. आप जाओगे, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट कैडिला. ठीक है, कैडिला मैंने अभी फ्राइडे को ही आपको एक कॉल दिया था मैंने टेलीग्राम में. ऑलमोस्ट ये पॉइंट पे मैंने आपको शायद कॉल दिया था. तो ये 1 आवर का चार्ट है कैडिला का. तो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल था और ये बुलिश दिखा मुझे, और ये परसों का एक जो रेंज है उसको ब्रेक करके निकला था, और ये एक्चुअली मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रिटर्न सप्लाई जोन में जाना था, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड आपको बताया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? समवॉट लेट से पिछला दिन का, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो उस रेंज के नीचे में आप कहीं पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ठीक है, नीचे में स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ठीक है, लेट से ये जो लास्ट कैंडल था उसके नीचे आपका एंट्री समवेयर यहाँ पे हुआ. ठीक है, फर्स्ट 1 घंटे का कैंडल के बाद. सो दिस इज योर रिस्क. दिख रहा है आपको, ये आपका रिस्क है, क्योंकि आपका एंट्री यहाँ पे हुआ और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा. तो देखते हैं कितना है. तो अगर मैं यहाँ पे, सॉरी चला गया, ओके, तो मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो माई रिस्क इज 8 रुपीज. कैन यू सी 8 रुपीज इज माई रिस्क, -8 रुपीज. सो नाउ you know that my risk is 8 rupees. Okay, and just now we calculated ki your risk, maximum risk, that is maximum what you can afford to lose, is 100 rupees. Risk in that trade is 8 rupees. So how much is the position sizing? How much you can buy? It should be 100 by 8. So somewhere you can buy around 12 stocks of Cadila. Okay, you can somewhere buy around 12 stocks of it will be somewhere around 12 point something. So we'll round it up to 12 stocks. So see, if you buy 12 stocks, how much is Cadila? Cadila is around at that time it was around 368 or 370. Let's say you are buying 370. You are buying 370 Cadila, that is 370 into 12 equals to, so you are investing just 4,440 rupees from your capital. That means out of your 10,000, okay, out of your 10,000 you are just investing 4,440 rupees, correct? So now let's take two cases here. Okay, let's take two cases. 10,000, case 1, you use just the strategy that I said. So where your risk is 100 rupees. So let's say
here the Cadila hits your stop loss. So after your stop loss gets hit, you have a loss of 100. So your capital remains 9,900 rupees, correct? Now case 2, let's say you buy the whole lot of Cadila which you can afford. Okay, so उसके लिए आप क्या करोगे? तो उस टाइम Cadila का रेट चल रहा था, आई थिंक गया, ओके, Cadila का रेट 370 चल रहा था, आई सपोज 370, लेट्स से, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाई 370, 27. तो आप यहाँ पे 27 स्टॉक्स खरीदते Cadila का, ठीक है, 27 स्टॉक्स लेते. और अगर आपका स्टॉप लॉस कटता है, एक शेयर के पीछे स्टॉप लॉस कितना था, हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे 8 रुपीज. सो यहाँ पे होता 27 स्टॉक्स इंटू 8 रुपीज आपका लॉस होता, जो कि फिर मैं काट दिया, वेरी बैड, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 27, यहाँ पे होता है 27 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 216 रुपीज. तो देखिए आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का लॉस लगा दिए, जब अगर आप पूरा फुल अकाउंट साइज देखें तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फुल अकाउंट साइज में कभी भी ट्रेड मत करिए. आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए, और रिस्क का बहुत ईजी है कैलकुलेट करना. सिंपली 1% ऑफ कैपिटल देख लीजिए कितना है, और उसी रिस्क को हमेशा वो जो फिक्स रहता है, आर बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है. तो अगर आप देखोगे ट्विटर पे देखोगे तो बहुत लोग जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपना हर दिन का MTM लॉसेस डालते हैं, तो वो लोग अपने लिखते हैं कि टुडेज लॉस इज 1.3 आर. कभी कभी वो लोग लिखेंगे टुडेज प्रॉफिट इज 2.7 आर. तो ये जो आर है, ये वो लोग का हमेशा फिक्स्ड रहता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स का. दैट मीन्स दिस रिस्क फॉर एवरी ट्रेड इज सेम फॉर देम. दैट इज द कैपिटल विथ विच दे स्टार्टेड. तो अगर उन्होंने कैपिटल जो है वो स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज से, सो वो लोग वो एक टाइम, लेट से 1 ईयर का जो पीरियड है, उसमें पूरा जब भी वो लोग आर बात कर रहे हैं, तो आर का मतलब होगा उनका एक 1%, दैट इज अराउंड 1000 रुपीज उनका एक रिस्क है. एक ट्रेड में उनका एक रिस्क 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं होता. अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो लोग शायद 2% तक भी रिस्क ले सकते हैं, दैट इज 2000. सो इट इज अ पर ट्रेड बेसिस. तो इसलिए याद रखिएगा पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही गलत जब होता है तब आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और आपके सामने आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कैपिटल खत्म हो रहा है. तो मार्जिन मनी इज नॉट योर कैपिटल. रिमेंबर, अगर आपने अपने अपस्टॉक्स या जीरोधा अकाउंट या कोई भी अकाउंट में अगर आपने सिर्फ 10,000 डाला है, तो जस्ट 10,000 इज योर कैपिटल, and for every trade that you take, the risk should be only 1% of it, that is 100 rupees, not more than that. So यही एक ग्रीड के वजह से, जो लोग ये फॉलो नहीं करके ग्रीडी बन के 10x मार्जिन यूज करते हैं, 1 लाख रुपीज का बाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू 10x मार्जिन मिल रहा है, और 1 लाख का बाई करके उसमें जब लॉस होता है तो वो आपका 10,000 में से 2-3 हजार वाइप आउट कर देगा. दैट इज ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ योर कैपिटल. सो सी, the most efficient way is to start slow, aim for less, और छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स है उससे खुश होना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में F&O में अभी ना घुसिए अगर आपका कैपिटल छोटा है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. अगर देखिए, लेट्स से Cadila आपको बाई करना है, ठीक है, ये Cadila है. Cadila आपका अगर आपको फ्यूचर या ऑप्शन में बाई करना है, तो जो मार्केट लॉट है दैट इज 2200. That means this is a minimum quantity that you have to buy if you want to trade in futures or options. So just think of the kind of risk that you are taking, okay? Kind of risk you are taking. 2200 शेयर्स है आपके पास, इसमें से अगर 1 रुपया भी जब ये चेंज होता है नीचे की तरफ, तो आपका लॉस वहीं पे 2200 नीचे लॉस में चला जाता है, माइनस. जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 रुपी चेंज. देखिए 1 रुपीज जैसी Cadila में चेंज होगा तो आपका यहाँ पे 2200 माइनस दिखाएगा, और 8 कर दिए तो फिर तो बताना ही नहीं है. जो हम लोग यहाँ पे अभी कैलकुलेट किए कि हमारा जो लॉस है दैट इज 8 रुपीज. सो इसलिए अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है, आई वुड से सिंपलेस्ट टर्म, अगर आपका अकाउंट साइज 2 लाख से नीचे है तो प्योरली गो फॉर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है. जो मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो मेरा अकाउंट इससे बहुत छोटा है, तो मैं सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स उठाता हूँ स्टॉक्स के, ठीक है. डिलीवरी ट्रेड्स उठाता हूँ स्विंग के लिए, और आई नॉर्मली कीप इट फॉर 2 to 5 days.
सो छोटे छोटे प्रॉफिट्स आते हैं बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आते हैं। F&O सेक्टर में बड़े प्रॉफिट्स आते हैं बट साथ में बड़े लॉसेस भी आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी मत भूलिएगा। अब बड़े बड़े MTM वाले जो फोटोज आते हैं ट्विटर पे और यूट्यूब में कि उनका 2 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है और इतना कमाने में उनका एक्सपीरियंस है एंड दे टू हैव द कैपिटल दैट बिग। So the people who are earning this 2 lakh and 3 lakh, their trading capital should be somewhere around 1 CR, करेक्ट, 1 CR। तो मुझे तो यहाँ 0 लिखने में कितना टाइम लग रहा है देखिए। सो उतना कमाने में कितना टाइम लगेगा आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट स्लो विथ गुड पोजीशन साइजिंग एंड गुड रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया और मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ। सो दिस वॉज अ लाइक इम्पॉर्टेंट thing that I want to share with you. So I hope it will be helpful for you if you have a account size which is less than 1 or 2 lakhs. Okay, so protect your capital. Protect your capital is the biggest rule of stock market. If you can protect your capital, then probably you can succeed. Because अगर आपका capital नहीं रहा तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे यार। इतना वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, इंट्राडे में ऊपर नीचे 5-6% नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो इतना वोलेटाइल मार्केट में आप अगर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडिंग के लिए बचोगे ही नहीं नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर पे। इसलिए प्लीज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डू बेटर पोजीशन साइजिंग, डू बेटर रिस्क रिवॉर्ड एंड डू बेटर ट्रेडिंग। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching. If you did like the video, please like it and subscribe my video, subscribe my channel. So thank you, keep watching, keep learning. Bye bye.